पहल पुरिये पुंडरक वना ताचे हंसा सगले जना कृष्णा ते जानऊ हारे हर नाचंती नचना पहल पुरुषा गिराया खून पुरुषा दमरा अस गाया से उसदा हल्का बागरा नाचे पिंदी में सागरा नाचंती गोपी जन्ना नैया ते बहरे कन्ना तर्क नाचा भ्रमिया चा केसवा बचाउनी अये मये एक आन जियो पिंदी बुकले संसारा ब्रह्म ब्रह्म आए तुमके द्वारा कुन रे मैं दी नामा हो जी आलाते निवारणा जम कारणा काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इनते आप छड़ावो एह भीतर ते इनको डारो अपन निकट बुलावो काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इनते आप छड़ावो के भीतर ते इनको डारो अपन निकट बुलावो अपन निकट बुलावो अपन निकट अपन निकट बुलावो अपन निकट बुलावो अपन निकट यह भीतर ते इनको डारो यह भीतर ते इनको डारो अपन निकट बुलावो अपन निकट बुलावो अपन निकट गुरु बाबा जी के पावन चरणों इस वेले जुड़े हुए सत्संगी जनों सबना जी आया आप सारे भले भागां वाले जिन्होंने करतार ने नरोआ शरीर दिता समा दिता साधन दिता सतसंग बख्शिया इथे गुरु पातशाह महाराज गुरु हरकृष्ण साहब जी दे चरण छो पावन स्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे दरबार विच जितने आप गुरसिख माई पाई सुशोभत हो जो टेलीविजन के राही इस माध्यम के राही भारत विच या भारत तो बाहरले मुल्कों च थां थां जितने भी जुड़े हुए हो मैं कहूँगा असी भले भागां वाले हाँ जिन्हां दे उपर करतार ने बड़ी कृपा की है जिस कृपा के सदका सानू सतगुरां दी संगत मानने का अवसर प्राप्त होया है गुरु प्यार दे विच सिक्खी सिदक दे विच उठाया होया आप जी दा एक कदम दास दी सिर मत्थे ते है बाबा नामदेव जी होरां दा पावन शब्द जो अज हुक्मनामा रूप दे विच फिर सानू प्राप्त होया अंत विच आके जदों वचन करते ने ना पिंदी बकले संसारा ब्रह्म ब्रह्म आए तुमचे द्वारा जे तुसी पुछो तू कौन रे कहते ने मैं जी नामा हो फिर क्यों आया है
ਆਲਾ ਤੇ ਨਿਵਾਰਣਾ ਜਮ ਕਾਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਜੇ ਆਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਹੈ ਘਰ। ਅਸੀਂ ਭਾਵ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਖਾਂਗੇ ਸੰਸਾਰ, ਅਸੀਂ ਭਾਵ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਖਾਂਗੇ ਇਸ ਭਟਕਣ ਤੋਂ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਟਕਣ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਟਕਣ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਹਾਲਤ ਨਿਵਾਰਣਾ ਜੋ ਜਮ ਕਾਰਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਝੂਠ ਨਿੰਦਾ ਇਨ ਤੇ ਆਪ ਛਡਾਓ, ਇਨ ਤੇ ਆਪ ਛਡਾਓ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਭੀਤਰ ਤੇ ਇਨ ਕੋ ਡਾਰੋ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢੋ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਓ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੰਨਾ 315 ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜੋ 33 ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਉਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇਹ 27ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਖੀ ਹੋਈ। ਲੈ ਫਾਹੇ ਰਾਤੀ ਤੁਰੇ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੈ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੈ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਗਲ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਫਾਹੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਣਦਾ ਕਰਤਾਰ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਬਾਤ ਆਖੀ ਉਹਨੇ, ਤੱਕੇ ਨਾਰ ਪਰਾਈਆਂ ਲੁਕ ਅੰਦਰ ਠਾਣੀ। ਓਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਦਾ ਹੈ, ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰਾਏ ਰੂਪ ਤੇ, ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਤੇ। ਸੰਨੀ ਦੇਨ ਵਿਖਮ ਥਾਏ ਮਿੱਠਾ ਮਦਮਾਣੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੰਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਸਮਝ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਆਪੇ ਪਛੁਤਾਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਐਸੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡਾਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਦਾਸ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਅਜਰਾਈਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਤਿਲ ਪੀੜੇ ਕਹਾਣੀ। ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ
इस्लामी ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਜ਼ਰਾਈਲ, ਜਬਰਾਈਲ ਇਤਿਆਦ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ, ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਤਿਲ ਪੀੜਾ ਕਹਾਣੀ, ਤਿਲ ਪੀੜੇ ਕਹਾਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਬਣਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ ਟੱਪਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਲਦਾਂ ਦੀਆਂ ਟੱਲੀਆਂ ਖੜਕਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਲੋਕ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਖੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਤਿਲ ਨਿਕਲਦੇ, ਤਿਲਾਂ ਚੋਂ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ? ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਤਿਲ ਕਿਤਨਾ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਬਰੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਭਾਰੀ ਗੇਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਲ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇਲ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਭਾਵ ਹੈ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ। ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਮਤ ਸੋਚੀ ਤੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣੇ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਰਤਾਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਬੀਜ ਬੋਣ ਦੀਆਂ, ਬੀਜਣ ਦੀਆਂ। ਕਦੀ ਲੋਕ ਨਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਦੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਛੱਟਾ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗੰਗਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਬੀਜ ਨੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦੇਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਿਆ ਜਾਣਾ ਆਦਿ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬੀਜ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁੰਗਰਦੇ ਹੋਣ, ਬੂਟੇ ਬਣਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਭਾਵੇਂ ਕਣਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਲੇ ਨੇ, ਜੌਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਫਸਲ ਆ ਰਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਵਲ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਲੀਭੂਤ ਹੋਣ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਗਦੇ ਨੇ। ਕਰਮਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਹਰ ਬੀਜ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗਾ, ਮੰਦਾ ਬੀਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੰਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਮੁੱਖ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ ਜਪ ਰਚ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਰੰਭਕ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਫਿਰ 38 ਪੌੜੀਆਂ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਸਮਝਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਓ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਵਾਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ
के दूर। हर मनुख अपने कर्मां दे अनुसार उत्थे चलेगा। मेरा फर्ज सी तुहानूं समझाउणा, मेरा फर्ज सी तुहानूं दसना, मेरा फर्ज सी तुहानूं ठीक राह ते तोरना। हुण पुत्रो अगां तुहाडे वस है। चंगा बीज बीजिया है तो नतीजा चंगा होगा, फल चंगा होगा। मंदा बीज बीजिया है तो कटना वढना खाना फिर मंदा होएगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई दखलअंदाजी नहीं कर सकता। गुरु पातशाह जी ने ना अज इत्थे ये ध्यान दिवाया। तुसी हैरान होवोगे जदों इस ध्यान दे नाल इन्हां पंक्तियां नूं विचारन दा असीं यतन करांगे। किहड़ी गल है? जो कुछ पौड़ी विच आखिया है ना, ये साडे सारा कुछ फिजिकल, जिन्हों आख्या जाता शरीरक आचार, जिहड़े केवल तन नाल संबंधित ने। किसी नूं फाय मार दे देना, किसी दी कंध पाड़ लैनी, किसी स्त्री दे शरीर ते अख रखनी, या कुछ ऐसा चोरी आदि करनी, सारा कुछ ये सब फिजिकल एक्टिविटीज ने, शरीरक सारियां क्रियावां ने। लेकिन सतगुरु महाराज आरंभ कितों करते हैं? कहते ने इस पौड़ी की व्याख्या रूप श्लोक। ये श्लोक भी उवें पंजवें पातशाह दे कहते ने, रहिंदे खुंदे निंदक मारे हन कर आपे आहर, संत सहाई नानका वर्तै सब जार। रहिंदे खुंदे निंदक मारे कर आपे आहर। कहते ने हुण बंदियां दे औगण तां इस तरह दे ने, चोरियां करनियां, डाके मारने, मंदी नीयत लैके एक दूजे वल तकना, हाँ जी, इत्यादि। शुभ गुणों वाले पासे तो ध्यान ही ना गया। जेड़े जीवन दे साडी शुभ गुण ने, दया है, धर्म है, धीरज है, सत है, संतोख है, प्यार है, क्षमा है, परोपकार है, ये तो साडा ध्यान ही नहीं गया। हुण ये कमजोरियां होण साडे विच, ते ये कमजोरियां होण दे बावजूद भी साडी पूरी ना पैंदी होवे, ध्यान रखियो जे। गुरुदेव ने जिहड़े शब्द वरते ने ना, मैं सिर्फ उन्हां दी भूमिका तुहाडे ध्यान विच लिया रहा। ਇਹ कमजोरियां होने के बावजूद भी साडी पूरी ना पैंदी होवे। सतगुरु कहते ने वैसे तो पल्ले रह ही कुछ नहीं जाता। जेड़ा बंदा डाके ते चोरियां करता है ते भैड़ियां इन्हां सारियां आदतां दा शिकार है, विकारी है, उहदे पल्ले रह की जांदा है। आखिया पल्ले रह गई हुण रहंद खूंद। सतगुरु ने शब्द वरते आ, रहिंदे खूंदे। रहिंदे खूंदे तो भाव है रहंद खूंद वाले, जिन्हां दे अंदर ना एवें थोड़ा जिहा कुछ बाकी रह गया। जदों ऐसियां भैड़ियां हरकतां करके भी ना पुगया गया, ना पूरा होया गया, ना अपने टीचे की प्राप्ति हो सकी, क्योंकि गुण तां रह कोई ना गए। फिर किहड़ा राह अपनाया? फिर राह अपना लिया निंदा करन दा। बई हुण मैं ना वैसे किसी को नहीं ढा सकिया, वैसे किसी को मैं पिछे नहीं कर सकिया, आप मैं किसी तो अगे नहीं निकल सकिया। अंग्रेजी का एक लफ्ज होंदा लेग पुलिंग करनी। आप दौड़ के अगे नहीं ना निकल सकिया, दूजे नूं ठिब्बी मार के हुण सुटना है। तो ठिब्बी किवें मारनी है? निंदिया नाल, जबान नाल। जबान नाल ही ना, केवल बोल ही नहीं, बोल होर की है। ते बोल केड़े? जेड़े बोल जेड़ा मेरे तो अगे तुरया जा रहा है, मेरे तो तेज निकल रहा है, जिसकी मैं बराबरी नहीं कर सकिया, जिसनों मैं जित नहीं सकिया, हुण उसकी जिहड़ी परसनैलिटी है, उसकी शख्सियत है ना, मेरे बोलों के नाल वो डैमेज हो गए, उहदा नुकसान हो गया। मैं इं जरूर विचारदा हाँ संगत जी, असीं कई बार ना
एक ओला जिहा बना लेंदे आ। देखो जी, मैं सच आखिया है, मैं कोई निंदा की उहदी, मैं सच आखिया। असी इं समझिया है कि झूठ बोलना ही केवल निंदा है। मैं इं नहीं सोचता, मैं इं सोचदा कि कदी कदी सच बोलना भी निंदा हुंदा है। मकसद है कि साडी इंटेंशन की है। असी सच बोल के किसी दी शोभा वधाउणी चाहुंदे आ कि चार भरावां दे विच असी सच बोल के उहदी पग लाउणी चाहुंदे आ? की करना चाहुंदे आ असी? ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਬਈ ਫਲਾਣਾ ਰੱਸੇ ਵੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਬਈ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਫਾਹ ਦੇ ਦੇਂਗਾ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ? ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਹਾ ਦਿੰਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ? ਰੱਸਾ ਚੁੱਕੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, मैं विचार करता पिया सी, मैं देखिया, है तो सच है ना सारा कुछ, झूठ नहीं है, सच है जिसने देखिया कर दिया। लेकिन जे इस इंतजार में रहा कि जिस वेले भरी जुड़ी होगी, जिस वेले इनका मान सन्मान हो रहा होगा, जिस वेले इनकी शोभा हो रही होगी, जिस वेले मैनू थां ना मिलेगी ठीक तरह, मैं उस वेले गल करांगा, वो निंदा ही है, होर भी कुछ है। इस ढंग दे नाल पग लाउणी, बई साडा होर कोई यतन नहीं चलिया, होर कोई चारा नहीं चलिया, सफल होने दे वास्ते ते निंदिया करनी शुरू कर दी। सतगुरां ने आखिया पहला ही पल्ले कुछ नहीं रह गया सी, रहन खूंद ही रह गई सी। ते जदों बंदा ना किसी दी निंदिया करन लग पैंदा, रहन खूंद भी जांदी लगदी है। सियाने बजुर्ग कह देंगे जिहड़ा इहने राह हुण फड़िया है ना, जिहड़ी थोड़ी बहुती इहदी इज्जत पहला बनी हुई सी, हुण वो भी नहीं रह जानी। मैनूं तां ऐसा प्रतीत हुंदा है। रहिंदे खूंदे निंदक मारिया ना कर आपे आहर। आ निंदिया करन वाले पासे तुरन वाला बंदा है। हुण आइओ गुरु पातशाह महाराज ना निमरता दे घर विच रहण वाले सानूं समझाउंदे ने। वाहिगुरू जी ने फिर इं प्रेरणा दी, चंगा फिर हुण तूं निंदिया कर ला, होर की गल है। जिहड़ा रहिंदा खुंदा वो भी गवा के बह गया। पर दूजे पासे जिन्हां दी निंदिया करदा है, जिन्हां दा जीवन सच दे टिकिया होया है, जिहड़े सच परमेश्वर करतार दे नाल जुड़े हुए ने, संत सहाई नानका वरतै सब जाहर। ये तो गल ज़ाहर है, बिल्कुल प्रगट है कि करतार जिहड़ा है ये संतां दा सहाई है। पर मैं हथ जोड़ के निमरता नाल बेनती करिया करदा गुरु ਦੀਆਂ संगतां नूं, जिहड़ियां गुरु दरबार विच जुड़न वालियां ने, संत किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं है। संत सत परमेश्वर सत करतार दे चिंतन विच रहण वाले शख्सियत का नाम है, जो अंदरों सत दे नाल जुड़िया है, हर वेले जुड़िया होया, जिहड़ा उहदे शुभ गुणां दा ध्यान रखदा है। हुण असीं इत्थे कहांगे ना किहड़े शुभ गुण दी गल है, इत्थे उस शुभ गुण दी गल जरूर हैगी है। मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, औ संभल थकी जी ओह कदे ना बोले कौड़ा, कौड़ा बोल ना जानना, कौड़ा बोल ना जानना है, वो कौड़ा बोलना जानता ही नहीं है। निंदा किन्नी कौड़ी लगती है जदों किसी व्यक्ति के कन्नां विच पैंदी है ना कि फलाना मेरे बारे आयों आखदा है, अणहोईयां गल्लां करदा है, या मेरे कोलों कदी कोई भुल होई सी, गलती होई सी ते उहदा गुड्डा बन्नी फिरदा, हुण किन्ना कौड़ा लगदा उस वेले। करतार करे, कृपा करे, मैं कहांगा, मैं इच्छा रखांगा किसी नूं इहो जी कौड़ी जी अवस्था विचों ना लंघना पवे। पर जे किसी सिख नूं लंघना पवे ना, फिर गुरु के बचनों का चेते रखे
वो निंदक है, मैं गुरु का सिख हाँ, मैं बाणी पढ़न वाला। माणयोग जी चेते करवा रहे सन ना, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। गुरु खालसा जी दे वल्लों निश्चित किया होया साडा ये मूल मंत्र है। वाहिगुरु साडा गुर मंत्र है। फिर असीं नितनेम दीयां बाणियां दा पाठ करना है। फिर साडा सधारण पाठ सारिਆਂ ਦਾ जारी रहना चाहिए, जिन्होंने असीं सहज पाठ आखण लग पए हां। ये क्यों है? अजे असीं संगत विच आउणा है, संगत विच जुड़ना जरूर चेते रखना। इत्थे ही हाज़री भर रहे सन माणयोग ज्ञानी जी हुणी, ज्ञानी साहब सिंह जी मारकंडे वाले मेरे बजुर्ग मित्र। मैं शायद घर बैठा सा, मैं सुनिया थोड़ा जिहा जदों वो इशारा कर रहे सन, कहंदे ने मैं आया इत्थे, बाहर एक गुरमुख सज्जन मिलिया, किधर चले हो? कहने लगे जी गुरु पातशाह दे आखे हुए 2 काम तो पूरे हो गए, हुण तीजा पूरा करन चले हैं। कहने लगे असी सहज सुभाव तो आखदे ही आखदे हाँ, लेकिन असीं गिनती नहीं की सी जिवें उस सज्जन ने की हुई सी। कहने लगे जी मैं समझिया नहीं। उन्होंने फिर समझाउंदियां होए आखिया, कहने लगे देखिया गुरु रामदास पातशाह का वचन है ना, गुर सतगुरु का जो सिख अखाए सो पलके उठ हरि नाम ते आवे। पहला की करे? उद्यम करे पलके प्रभाती स्नान करे अमृत शरण आवे। फिर उपदेश गुरु हर हर जप जापै सबके लिए पाप दोख ले जावे। ए 2 काम हो गए ना, अमृत वेले जागे, स्नान किया, नितनेम अपना कर लिया, सिमरन अपना कर लिया। हुण तीजा काम आखिया, फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावै, बहंदियां उठदियां हरि नाम ते आवै। हुण गुरबाणी गाउण वाला जिहड़ा कर्म है ना, जरूर ध्यान रखना। कीर्तन भी इकल्लियां दा नहीं हुंदा ते कथा विचार भी इकल्लियां दी नहीं हुंदी। ये संगति कर्म है साडे। भाव संगत विच जरूर जाओ, शब्द गाओ, शब्द दी विचार करो आदि। मैं लम्मी गल सिर्फ इसलिए कर रहा सा, जे कोई निंदिया करता है, ये ओदियां बिरतियां वाला विकारी पुरुष असीं जान भी लैंदे हां कि ये बंदे कोलों होर की आस हो सकती है ना। तो सानू फिर तत्ते होना चाहिए, सानू फिर कौड़े होना चाहिए, सानू उहदे वाली भाषा वरतनी चाहिए है। इहो नहीं करना बनता साडा। जिहड़ा बाणी नाल जुड़न वाला है, जिस रसना तो सवेरे सवेरे बाणी का प्रवाह चलिया होवे, जिन्हां कन्नां दे विच अमृत वेले बाणी दी घुड़ी होवे, मिठा रस शहद की मिठा, साची बाणी मीठी अमृतार। संगत जीओ, सतगुरां ने प्रेरणा बख्शी। असीं कल भी निंदकां दी गल कर रहे सां ते किहड़े निंदक खास तौर ते जिधर इशारा गुरबाणी विच सी, मैं समझण दा ते आप जी दे सामने सन्मुख रखण दा यतन कीता। इस निंदक कोड़मे दे विचों ना जिहड़े गुरु के शरीक बन बन के चले, उन्हां दे विचों धीरमल दा नाम भी तुसां ने जरूर सुनिया होवेगा। धीरमल गैर नहीं सी कोई। महाराज सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब जी दे 5 सपुत्र ते 1 सपुत्री सी। बीबी वीरो धी सी ते 5 पुत्र बाबा गुरदित्ता, सूरजमल, अनी राय, अटल राय ते तेग बहादुर सी। धन गुरु तेग बहादुर साहब 5 पुत्र सन। बाबा अटल छोटी उम्र चलाना करता है। गुरदित्ता जी दे अगे 2 सपुत्र सन। वड्डे सन धीरमल, छोटे सन हर राय, जो गुरु हर राय साहब होए। गुरु हर राय साहब ने अपनी थां ते सेवा दी, बुराई सौंपी
अपने वड्डे सपुत्र राम राय होरां नूं छड्ड के ते योग जानदियां होइयां हरकृष्ण साहब इस सारे समय दे दौरान ना धीरमल परेशानी की अवस्था विचों लंघ रहा सी। तुहाडे ध्यान विच जरूर रहे कि सतगुरु महाराज गुरु हरगोबिंद साहब जी दीयां 3 शादियां दे विचों एक शादी जिहड़ी सी उन्हां दी बकाले होई सी। माता नानकी जी जिन्हां दा शुभ नाम सी और उन्हां दे सपुत्र ही सन गुरु तेग बहादुर साहब। और दूजे पासे गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी के पोतरे का विआह भी बकाले होया सी। धीरमल का विआह भी बकाले सी। बकाले नाल भी जुड़िया होया सी। जिस वेले ना इस स्थान ते जिथे आपां बैठे हाँ महाराज सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब ने वचन कर दिते अंत समय बाबा बस्त है बीच बकाले बन गुर संगत सकल संभाले। भाई गुरबख्श होनी जिहड़े पुछ रहे सन उन्होंने सारी गल सुनी ते समझी। सत्कारयोग माता किशन कौर जी जिहड़े सराहने बैठे हुए सन उन्होंने गल सारी समझी। कोई ओला है नहीं सी कि किहड़े बाबे की गल हो रही है। पर साडा इतिहास भी दसदा है कि जिस दिन सतगुरु महाराज 31 मार्च नूं परलोक गमन करते हैं ज्योति जोत समाते ने सिर्फ 4 दिन पहला ऐसे स्थान ते बाबा तेग बहादुर साहब उन्होंने मिल के जाते हैं। इथों फिर बकाले जाते हैं पूर्व वाले पासों आए हुए। तो कोई ओले वाली गल नहीं सी है। लेकिन जिस वेले कन्ना विच यह गल पई कि गुरु हरकृष्ण साहब ने आख्या बाबा बसदा बीच बकाले तो वह तो बाबा फिर मैं हाँ। हुण बाबा नहीं बनता सी। धीरमल सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब का बाबा नहीं बनता सी, ताया बनता सी। ताए नूं कदी बाबा नहीं आख्या जाता पंजाब दे विच पंजाबी विच। फिर उन्हें टकवंज बनाया। मेरा बाप बाबा सी ना उन्हां दा, गुरदित्ता जी बाबा सन ना। तो शमशेर सिंह अशोक होनी आखदे ने कहंदे दसो आप कितना कमला है लालच विच आया होया कि महाराज गुरु हरकृष्ण साहब जिउंदे बाबे की गल करते हैं कि मर चुके बाबे की गल करते हैं भला। पर जदों ना बंदा विकारी जे अंदरों बनया हो ना, विकारी बनया होए लफ्जां नूं ट्विस्ट करता है अपना पक्ष सिद्ध करने वास्ते। मैं संखेप करा उत्थे किन्नियां मंदियां लगियां सन किन्नियां नहीं लगियां सन साडे इतिहासकार तां आम तौर पर वाह थैंक यू इउं जिक्र करते हैं कि 22 मंदियां लगियां हुई सन। पर उन्हां 22 दे विचों जिहदी वधेरे चलदी सी ना वो सी धीरमल कोल नाल गुरु ग्रंथ साहिब की बीड़ भी उन्होंने पास सी जिहड़ी महाराज गुरु अर्जन साहब जी ने तैयार करवाई सी भाई गुरदास जी के पासों। असीं थोड़ा जिहा ना इशारा माड़ा जिहा कल कीता सी। यह समझदा सी कि मेरा पलड़ा भारा है हर तरह करके कि गुरु साहब दे गुरु ग्रंथ साहिब लिखिया होया भी मेरे पास है तो मैं भी वैसे बाबे क्यां दे विचों होया, इसलिए मेरा दावा जिहड़ा है वो पक्का है। तो मैं बकाले दा रहण वाला, मेरे सौरे इत्थे ने। उधर सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब उत्थे सन और उनके अंदर रड़क सी जे मेरे राह विच कोई रुकावट बनता है ना गुणा करके मेरे तो अगे है या असल विच जो बाबा बनता है वो तेग बहादुर है, मैं नहीं बनता। हुण पासे किवें करां? तुसीं कथा सुनते होगे ज्ञानी जी होनी रोज शाम नूं करिया करते हैं गुरु प्रताप सूरज जी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਾ है कि एक दिन अमृत वेले सतगुरु महाराज बाहर जंगल पानी होकर जो वापस मुड़ के आते हैं तो उन्होंने ते आप गोली चलाता है महाराज गुरु तेग बहादुर साहब ते। गुरु घर दे विच सिक्खी मंडल दे विच गुरु घर दे विच गुरु साहिबान ते गोली चलाई जाए शरीकेबाजी करके ये सब तो पहली घटना सी। और गल फिर इत्थे नहीं रुकती।
फिर एक दिन ऐसा आ जाता है कि जदों सारी गुरुआई की रस्म कर दी जाती है, गुरु तेग बहादुर साहब जी के संबंध में ये सारा कुछ हो जाता है। भाई मक्खन शाह वर्गे आ जाते हैं, आ पहुँचते हैं, तो बड़िया संगतां सारियां जुड़ जांदियां ने। फिर शींह मुसंद नूं तैयार करके भेज दिंदा। अर्शियां आके सारे का सारा समान लुट पुट के लै जांदा। इथों तक कि गुरु घर दे विच जिहड़े लंगर दे भांडे सी सारा कुछ इकट्ठा करके लै गया। भाई मक्खन शाह गए, वो सारा कुछ लै आए, धीरमल के बाबत भी मंदा चंगा बोल आए, सारा कुछ कर आए। तो शींह दी मुश्का बन के मैं आखा भी इत्थे लिया के सुटिया उस महाराज के चरणों में। सतगुरां पूछा की है, तो हाथ जोड़ के आखिया पातशाह ये उस व्यक्ति का करिंदा है, करिंदा जिसने अपनी जालसाजी नूं छुपाउण दे वास्ते इसनूं वरतिया, संगतां नूं गुमराह करने वास्ते वरतिया है, और इथों तक अपनी आस पूर्ण करने दे वास्ते ने यतन किया है कि इसने आके तुहाडे मत्थे विच गोली मारी है संगत दे विच। इसने मैं जाके सारा बाकी तो हिसाब किताब मैं बराबर कर आया। मैं अपने आप गोली नहीं इनू मारना चाहता सा। सतगुरु कहने लगे हुण तुसीं की चाहुंदे हो? फिर कहंदे मैं तुहाडे कोलों आग्या लेना चाहुंदा, जे तुसीं किरपा करो आग्या दिओ। इसे संगत विच ही मैं इसने गोली मारदा ताकि आउण वाले समय दे विच कोई इहो जी होछी हरकत गुरु दरबार विच ना कर सके। जदों यह बेनती की, शींह ने सुनी, गड़ियाउण लग पिया, जिवें मौत सामने दिसन लग पैंदी हुंदी है, मौत सामने दिसन लग पई। मुश्कां बधियां होईयां, हाथ पिछे जोड़े हुए, सिर निवा के रोंदा होया कहन लगा महाराज मेरे को भुल हो गई है, मेरे को बहुत बड़ा गुना होया, पाप होया, पर मैं तुहाडे पास बेनती करदा जे किरपा करके तुसीं बख्श सकदे हो, अज तुसीं मैनूं क्षमा कर दो। आउण वाले समय लई मैं सदा तुहाडा अनुसारी बन के रहांगा, मैं कदी ऐसी भुल नहीं करांगा, मैनूं क्षमा कर दे। इतनी लंबी गल आपां ने विचारी ना सारी। एक पासे धीर मल है जेड़ा योग नहीं है, लालच का मारिया होया है, हर हथ कंडा अपनाना चाहता है, आप गोली मारी तो गल बनी नहीं, सिरे नहीं लगी, उदों भी सतगुरु बच गए। फिर अपने मुसंद नूं भेजिया गोली मार दिओ इसनूं। ते दूजे पासे महाराज धन गुरु तेग बहादुर साहब, असीं संसारी बिरती रख के जदों फैसला करांगे ना अपनी मत दे नाल, असीं कहांगे इहनूं क्यों नहीं गोली मारनी चाहिदी, इहनूं गोली ना मारो, उसनूं भी जाके गोली मारो जिसने इसनूं भेजिया है। लेकिन मैनूं खिमा करिओ जे फिर असीं हाँ ते गुरु गुरु ने। महाराज संसारी बिरतियां अपनी थां ते ने, ते करतारी बिरतियां जिसका स्वरूप, जिस करतार का स्वरूप लैके सतगुरु सच्चे पातशाह तुरे ते सानू जिन्हां ने जुगती सिखाई सारी, वो कुछ होर कहंदे, कहंदे मक्खन शाह छड़ दिओ, इन्हां छड़ दिओ। कई गल्लां फिर अगों हुंदियां होईयां। महाराज ने संखेपां नाल आखिया करनी क्षिमा महा तप जान, क्षिमा करत ही दैबो दान, क्षिमा सकल तीर्थ स्नान, क्षिमा करत नर की कल्याण, क्षिमा समान आन गुण नाही, तांते क्षिमा धरो मन माही। तो सुनो, भुलां करनियां गलतियां करनियां मनुख दा सुभाव है, मनुख करया करदे ने, सजावां देनियां भी मनुखां दा सुभाव है, मनुख दया करदे ने, समाज दया करदा है, पर करतार दा सुभाव है क्षमा करना, क्षमा करना। To err is human, to forgive divine। फॉरगिव करना, क्षमा कर देना, ये रब्बी गुण है, ये साधारण बंदियां कोल नहीं हुंदा, समान बंदे भी नहीं कर सकते।
रब रूप ही कर सकते हैं। और सतगुरां ने आख्या तो क्षमा कर दिता। याद रखियो जे, समा मैनू विस्तार नहीं करन दिंदा इस वेले। ओही धीर मल जिहड़ा इतने ताने बाने करदा रहा, सारी उम्र झूठ ते पलदा रहा, जिंदे पास सतगुरु जी ने जो बीर बधी सी, जिंदा मैं जिक्र कर चुका, अपने कोल जिसने कब्जे विच रखी, सारा कुछ कीता, नहीं मन्निया सारी उम्र। जिसने सतवें छेवें पातशाह जी के हुक्म नूं, सतवें नूं नहीं मन्निया, अठवें नूं नहीं मन्निया, नौवें नूं नहीं मन्निया, जिसने जिस वे नौवें शहीद होए 1675 नवंबर दे विच, मगर महीने विच, तां उसे साल विच ही औरंगजेब की हुकूमत ने आके बकाले विचों धीर मल नूं भी अरेस्ट किया है। और एक साल 2 महीने ते 12 दिन रंथमबोर के किले विच रखिया, ते किले दे विच ही तीर मल चलाना करके मर गया। धीर मल के बाद उसका पुत्र रामचंद बैठा अपने पिता की गद्दी ते, आखदे तो सन ना गुरु नानक की गद्दी ते बैठा, उसनों भी सद लिया गया। और उसे साल दे विच 1678 दे विच चांदनी चौक दे विच तिन्ने उसके साथी ईशर सी, तुलसी सी, एक होर सी, रूई दे नाल लपेट के थंम नाल बन के उन्होंने साड़िया और रामचंद का भी शीश कतल कर दिता। साडे विच कोई जिक्र ही नहीं है, कोई चर्चा ही नहीं है, की जिक्र करिए शरीकां दा। जे वेहे कर्म कमांदा ते वेहे फलते। सतगुरां ने जिहड़े वचन कीते ना, कहते ने संत सहाई नानका वरतै सबजार। सच की रखिया करने वाले, सच नाल जुड़िया की रखिया करने वाला परमेश्वर आप है। हुणे जदों भाई साहब होरी, भाई गुरनाम सिंह होरी कीर्तन कर रहे सन, तो उन्होंने वचन सुनाया गुरु रामदास पातशाह का महाराज का, जिन्हें अंतर गुरमुख प्रीत है, तिन हर रखन हारा राम राजे, तिन की निंदा कोई क्या करे। हाँ जी, जिन हरे नाम प्यारा। कर लेंदे जिहड़ा करदा, फिर तुसी अपना मार्ग छड्ड के ना तुरो। और ध्यान रखो अजिहियां बिरतियां दे बाबत। महला पंजवां। मुंडो भुल्ले मुंड ते किथे पाए ने हथ। ये तो मूलों ही भुल गए, आरंभ तो ही भुल गए, मुड़ तो ही भुल गए। ते मूल की है? करतार। जिहड़े करतार नालों टुट गए, हुण हथ किथे पवे इन्हां दा। तिन्ह मारे नानका जे करन कारण समरथ। इन्हां दा ये हाल है। जिवें मैं एक उदाहरण दित्ती धीर मलियां दी, पृथी चंदियां का भी ये हाल होया, राम राइयां का भी ये हाल होया, और बीते शरीकां का भी ये हाल होया है। तो मैंने क्षमा करियो जे, तुसी विशाल नजरिए नाल तकियो जे। अज भी जो श्री गुरु ग्रंथ अते पंथ की बराबरी करदा है ना, उन्हां दा भी ये हाल होया है। नहीं तो याद रखियो जे, तुसी अपनी अखां नाल वेखोगे, उन्हां दा भी यही हाल होएगा। तिन्ने मारे नानका ये करन कारण समरथ। पातशाह जी कहते ने, इसे तरह ये निंदा करनी भी एडा वड्डा दोष है जिड्डे दोष ऐ ने। पौड़ी पंजवां। लै फाहे राती तुरे प्रभ जाने प्राणी। प्राणी रात में फाहे बना के लैके तुर पवे कोई, तके नार पराइयां लुके अंदर ठाणी। ते ओले दे नाल पराई इस्तरी ते नजर रखे, सन्नी देन विखम थाए मिठा मत माणी। ते किसी के घर विच सन लावे, पाड़ लावे, नशियां दी वरतों करे। हुण किड्डा वड्डा भैड़ा गुनाह दस्सिया, किड्डा वड्डा औगण दस्सिया। सानू सुचेत होने की लोड़ है। आखिया फिर पातशाह ने, कर्म ही आपो अपनी ही आपे पछुतानी। ये सारे जिन्ने कर्म ने ना, मनुख जो आप कमाउंदा है, कि फिर आप उसनूं भुगतने पैंदे। ते भुगतने किवें पैंदे ने? अजराईर फरिश्ता तिल पीड़े कहानी। फिर ना जिवें तिल पीड़िया जाता है ना, कहानी में आके तिल पीड़िया जाता, छोटे तो छोटा होंदा है,
फिर भी इन्ना ਉਹਨੂੰ ਦਰੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੇਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਅਤੀ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ, ਅਤੀ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਯਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਖਿਆ, ਪਿੰਦੀ ਉਬਕਲੇ ਸੰਸਾਰਾ ਭਰਮ ਭਰਮ ਆਏ ਤੁਮਚੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਐਸਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਰੇ? ਮੈਂ ਜੀ ਨਾਮਾ ਹੋਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮਦੇਵ ਆ। ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਆਲਾ ਤੇ ਨਿਵਾਰਨਾ। ਆਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ, ਜੰਜਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਬਚਾਓ ਜੋ ਜਮ ਕਾਰਨਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਚਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ, ਨਾਲ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ, ਮਾਣਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਭਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਝੂਠ ਨਿੰਦਾ ਇਨ ਤੇ ਆਪ ਛੁਡਾਵੋ, ਇਹ ਪੀਤਰ ਤੇ ਇਨ ਕੋ ਡਾਰੋ, ਆਪਨ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਵੋ, ਆਪਨ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਵੋ, ਆਪਨ ਨਿਕਟ ਆਪਨ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਵੋ, ਆਪਨ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਵੋ, ਆਪਨ ਨਿਕਟ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਓ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸੰਗਤੋ ਆਪ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਇਹ ਉੱਤਮ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸਿਰੇ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹੇ ਅਜਿਹੇ ਸਬਜੈਕਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਦੂਰ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਭੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਜੇ ਨਾਮਦੇਵ ਵਾਂਗੂ ਆਲਾ ਤੇ ਨਿਵਾਰਨਾ ਜਮ ਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਸੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਜੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਓ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਵਿਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿਆ ਜੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਦਿਆਂ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।